Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know, we have already done some of the chapters of our GK syllabus and today we are going to start with some new topics of the same. Okay, so let's begin with the new topic that is given at the next topic is story time. Okay, so everybody kindly open your books at page number 66. So the topic is story time. This is not a topic actually, it is a kind of a story given here, and what you have to do, that you have to find a suitable title for this story. Okay, as you can see in the book that there is a story is given here and their dialogues are also given and you have to give a suitable title to the story. आपको ये story जो दी हुई है इसके लिए एक title बनाना है according to the story. After reading the story, after understanding the story, you have to give a suitable title for the story. Okay, so the first thing, the heading is enjoy this story from Greece. Think of a title for the story. Okay, this story, the given at page number 66, it is from a Greece country. पता है सबको Greece is a country. Okay, so this story is from a Greece and in this story there is no title as you can see on the page and you have to give a title to this story after understanding the story or after reading the dialogues of the story. So the first picture that as you can see in the picture that is मतलब आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्या that you can see there is a king, एक king है यहाँ पे. Okay, and I think there is a her daughter is also here. Okay, so अब आप देखिए इसकी स्टोरी क्या है. The first picture shows God please grant me a wish that everything I touch turns into gold. So here is a king in the first picture. He is granting a wish from the God. वो भगवान से एक इच्छा मांग रहा है कि भगवान मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए. So that whatever I touch it मतलब it become a gold. मैं जिस भी चीज़ को छूँ वो क्या बन जाए, एक गोल्ड बन जाए, सोना बन जाए. Okay, so he वॉन्ट्स की किसी भी चीज को अगर मैं छूं तो इट टर्न्स इनटू अ गोल्ड सो दैट वो गोल्ड से वो क्या हो जाएगा, रिच. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द स्टोरी. योर boon is granted. I have more gold than any other king in the world. Okay, so what does when he prays to the God, जब वो God को प्रे करता है, God please grant me a wish, मेरी इच्छा पूरी कर दो कि जो भी मैं चीज़ छूँ, जिस चीज़ को भी मैं टच करूँ वो किसमें, वो एक सोने में बदल जाए. किसी भी चीज़ को जैसे मैं छूँ इट टर्न्स इनटू द गोल्ड. सो जो गॉड है ओके कहते ओके आई जस्ट टर्न योर विश, ओके आई जस्ट ग्रांट योर विश. ठीक है, आपकी मैं इच्छा पूरी करता हूँ. एंड नाउ वट एवर यू विल टच यू टू टर्न इनटू गोल्ड, वो गोल्ड में टच हो जाएगा, गोल्ड में चेंज हो जाएगा. ओके, सो जब उसको जो द किंग ही फील्स वेरी हैप्पी कि नाउ ही इज वेरी हैप्पी कि नाउ आई हैव द गॉड हैज ग्रांटेड माई विश. अब मैं दुनिया का सबसे रिच पर्सन बन जाऊंगा ना. आई बिकेम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज अब मेरे पास सबसे जितने भी किंग्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड उनसे सबसे ज़्यादा गोल्ड मेरे पास होगा. सो दैट मीन्स अगर मेरे पास सबसे ज़्यादा गोल्ड, सबसे ज़्यादा सोना होगा तो मैं सबसे रिचेस्ट किंग बन जाऊंगा. बट वॉट एक्चुअली हैपन्स, डोंट कम नियर मी फादर. ओके, तो उसके बाद क्या होता है बेटा, दैट हर डॉटर द डॉटर ऑफ द किंग वो भागते अपने पापा के पास आते. शी कम्स रनिंग टू हर फादर एंड शी इज फादर फादर फादर. देन फादर सडनली रियलाइज कि अगर उसकी बेटी ने उसको टच कर लिया तो देन शी विल ऑल्सो टर्न इन टू द गोल्ड. इफ ही टच मतलब उसने अगर अपनी बेटी को टच कर लिया देन शी विल ऑल्सो टर्न इन टू द गोल्ड. सो जब वो भागते हुए उसके पास आती है तो उसे रोकता है, डोंट कम नियर टू मी, मेरे पास मत आओ, डोंट टच मी. बट शी डिडंट लिसन टू हिज फादर, वो अपने फादर की बात नहीं सुनती एंड शी जस्ट केम रनिंग. एंड what happened then? Oh, what have I done to you, my child? I should have never been so greedy. Okay, so just when that child, her daughter came running to him, so what happens कि जैसे वो भागती हुई आती है तो और जैसे वो अपने फादर को टच करती है she suddenly turns into the gold. Okay, she just became an idol of a gold. वो एक सोने की मूर्ति बन जाती है. और ये देख के जो किंग था वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो कहता है oh no, what I have done, मैंने क्या कर दिया, that I myself has changed my daughter into the gold. मैंने खुद ने ही अपनी बेटी को एक गोल्ड में चेंज कर दिया है. मतलब नाउ शी हैज बिकेम आइडल, अब वो एक मूर्ति बन गई है सोने से बनी हुई.
God, this boon had turned into a bane. Please, God, take it back. Take all my gold away and give back my daughter. सो वट हैपन व्हेन ही रियलाइज दैट ना उसकी ग्रीडी होने की वजह से, उसके लालची होने की वजह से क्या हुआ है, दैट ही हैज टर्न्ड हिज डॉटर इनटू अ गोल्ड. उसने अपनी बेटी को किसमें, गोल्ड में, एक सोने की मूर्ति में चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडीनेस, उसकी खुद की लालच की वजह से. तो फिर बाद में उसको रियलाइज होता है कि दैट उसकी लालच ही की वजह से उसको ये सब किया. तो देन ही अगेन प्रेज टू गॉड कि प्रे टू गॉड कि प्लीज गॉड, मेरी जो ये विश है जो आपने ग्रांट की, इसको वापस ले लीजिए. ये एक विश की बजाय मेरे लिए एक अभिशाप बन गया है, सिन, ठीक है, सिन बन गया है, पेन बन गया है, क्योंकि मैंने अपनी ही बेटी को एक गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया है. नॉट शी कांट मूव, शी कांट टॉक टू हिम, शी कांट ईट, शी कांट वॉक. ओके, तो उसको रियलाइज होता है कि उसकी लालच की वजह से ही हैड टर्न्ड हर डॉटर इनटू द गोल्ड. देन व्हाट हैपेंस, देन द गॉड, मतलब जस्ट जब वो विश करता है गॉड से, तब एक्चुअल में भगवान को क्या दिखाना होता है, दैट ही वॉन्ट्स टू शो हिम दैट कि यू आर बीइंग ग्रीडी एंड अपनी लालच की वजह से आप तुम ऐसी विश मांग रहे हो, बट दैट इज नॉट फ्रूटफुल एट ऑल. ओके, सो जब फिर भगवान को समझ में आता है दैट इसको अपनी गलती रियलाइज होगी ना, ही हैज रियलाइज दिस मिस्टेक. व्हाट ही डू, देन ही क्रेड कि ओके आई जस्ट, जो आपकी विश थी मैं उसको डिस्कार्ड करता हूँ, उसको खत्म करता हूँ. ओके, बट उसके बाद में कभी तुम्हारी कोई विश फॉलो नहीं, मतलब ग्रांट नहीं करूंगा. देन ही सेड ओके गॉड, नो प्रॉब्लम, आई विल नॉट ग्रांट एनी विश फ्रॉम यू, बट जस्ट टू वन थिंग दैट मेरी जो विश मैंने आपसे मांगी थी और जो भी चीज मैंने गोल्ड में कन्वर्ट की थी वापस उसी चीज में हो जाए. इसके बदले चाहे तो आप मेरी की पूरी जो किंगडम है वो भी ले सकते हैं, बट जस्ट मेरी जो डॉटर है उसको वापस से एक इंसान बना दीजिए. सो व्हाट देन द गॉड, अगेन गॉड है जो उसकी बात मानते हैं. उसके बाद ही जस्ट डिसअपियर्ड एंड देन अगेन जो उसकी डॉटर होती है, शी अगेन टर्न्स इनटू अ ह्यूमन बीइंग. ओके, अब उसकी डॉटर किसमें बन गई है, शी अगेंस्ट टर्न इनटू अ ह्यूमन बीइंग. ओके, सो दिस इज द स्टोरी. सो नाउ आफ्टर दैट ही रियलाइज दैट ही वाज वेरी ग्रीडी, वो बहुत लालची था, जिसकी वजह से उसकी डॉटर को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. Okay, so what, according to you, what will be the topic, what will be the suitable topic for this this story? आपके हिसाब से स्टोरी के लिए जो प्रॉपर टॉपिक या आइडियल क्या बोलते हैं उसे, हेडिंग क्या होगी, आइडियल मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि टाइटल क्या होगा. सो आई फील इट शुड बी द ग्रीडी किंग, लालची किंग. ओके, सो द टाइटल फॉर द टॉपिक, सुटेबल टाइटल फॉर द टॉपिक इज द greedy, GREEDY, greedy king, लालची राजा. I think this is a suitable topic. Okay, moving next. So this was page number 66, and after that you have to move to next. We have to move to the next page that is given. That is page number 79. So everybody, kindly open your books at page number 79. That is 7979. Okay. So देखिए, Indian words in English. This is given at page number 79. So let me first of all write the title of the topic. That is Indian words in English. What is the meaning of Indian words in English? इसका मतलब क्या हुआ? Indian words in English, given at page number 79. ओके, सो इंडियन वर्ड्स हैं कुछ जो कि इंग्लिश में यूज करते हैं. ओके, सो देखिए पहले इस टॉपिक में क्या हम देखेंगे. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सम इंडियन वर्ड्स. कुछ इंडियन वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश की डिक्शनरी में यूज होते हैं. ओके, दे आर टेकन फ्रॉम द हमारी जो लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, उससे लिए गए ये इंडियन वर्ड्स हैं जो कि डिक्शनरी में यूज किए जाते हैं. ओके, सो हम उसी के बारे में बात करेंगे. देखिए द हेडिंग इज हियर, इंडियन वर्ड्स आर गेनिंग इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी इन द वर्ल्ड. जो इंडियन वर्ड्स हैं, वो शब्द जो हमारे हैं, वो जो वर्ल्ड में बहुत सारी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बटोरते जा रहे हैं. सेवरल वर्ड्स दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया आर यूज्ड इन इंग्लिश.
and have been recognized by reputed dictionaries. ओके, जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि इंडिया के ओरिजिन हैं, जो यहाँ से हमने जो मेन इंडिया की ओरिजिन है, मतलब जो इंडियंस की लैंग्वेज है वहाँ से राइज हुआ है, ठीक है, इन इंग्लिश एंड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी डिक्शनरी, और ये बहुत सारी जो डिक्शनरीज हैं हमारी उन्होंने भी इसको रिकॉग्नाइज। सो ये जो वर्ड्स हैं, जो ये इंडियन वर्ड्स हैं, ये बहुत सारी जो डिक्शनरीज हैं उसमें इन इंडियन वर्ड्स को यूज किया जाता है। दीज ऑल आर यूज इन डिक्शनरीज सो दैट कि मतलब एज अ मीनिंग इनको यूज किया जाता है डिक्शनरीज में। आपको ये वर्ड डिक्शनरीज में मिलेंगे। मैच द इंडियन वर्ड्स इन इंग्लिश गिवन बिलो विद देयर डेफिनेशंस। सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू मैच द इंडियन वर्ड्स विद द इंग्लिश वर्ड्स कि उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, उसके मीनिंग क्या है। तो हमें जो इंडियन वर्ड्स हैं जो दिए हुए हैं कुछ डिक्शनरी में दिए जाते हैं, इनको हमारे जो इसका इंग्लिश मीनिंग है उससे क्या करना है, मैच करना है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू मैच इट, starting with the first one, that is chit. That is chit. C-H-I-T, chit. So I should erase it so that I can write the answer. Page number 79. The first one is chit. Chit word तो आपने सुना होगा, cheat नहीं chit. This chit means कहते हैं ना छोटी सी पर्ची, दैट वी कॉल चिट। जो छोटी सी पर्ची होती है उसको हम चिट बोलते हैं। ओके, सो ये चिट क्या है, ये छोटी सी पर्ची होती है जिसको कि कोई भी छोटी सी इंफॉर्मेशन या कोई छोटी सी किसी को कोई बात बतानी हो तो हम कहते हैं छोटी सी पर्ची पे लिख के दे दीजिए। सो दैट इज द चिट, दैट वी कॉल चिट। ओके, सो दैट इज चिट। ओके, सो इसका आंसर जो आपकी मैचिंग दी हुई है, वी हैव टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम हियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ चिट इज दैट इज शॉर्ट ऑफिशियल नोट टिपिकली रिकॉर्डिंग अ सम ओट। ओके, एक छोटा सा नोट जिसपे मतलब एक छोटी सी, आपको जैसे मैंने कि आपको बताया, दैट इज स्मॉल काइंड ऑफ अ जिसको हम पर्ची बोलेंगे। ओके, स्मॉल काइंड ऑफ नोट जिसके के अंदर जो भी कुछ लिखा हो। सपोज जैसे आपने सुना होगा चिट सिस्टम, जो लॉटरी विड्रॉ है, जो लॉटरी सिस्टम है, दैट इज समटाइम चिट सिस्टम। तो उसमें छोटी छोटी चिट्स बना के डाली जाती है एंड दे जस्ट पिक इट, और जो भी है उसका है वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग वो जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या एडमिशन जो होती है वो होती है। Okay, so this is the chit. This is a small note, small note. That small, a short official note, typically recording a sum oath. Okay, so the answer of your first chit is I. I'll just write down the I. Okay, I. That is small, short, official note, typically recording a sum oath. Clear? Moving next to the second one. The second one is jungle. 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 Yes. Jungle तो आप सबने सुना होगा. This is a very common word. Jungle. We are having the cartoon animated movies also on jungle, the Jungle Book. Okay, so what is the meaning of jungle? Jungle क्या होता है? इसको देखिए, jungle is used in English also as well as in Hindi also. तो ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में यूज होता है। दिस जंगल इज यूज इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंगल, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट। बहुत सारे पेड़ों जो अब इकट्ठे एक जगह होते हैं, दैट वी कॉल फॉरेस्ट, जिसको हम जंगल बोलते हैं। जंगली जानवर जहां रहते हैं, दे आर नॉट जंगल। ठीक है, सो बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत ही प्रॉपर एरिया जहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, पंछी रहते हैं, एंड इट इज क्वाइट क्या बोलेंगे, दिस इज स्कैर्ड फॉर, हमारे लिए थोड़ा खतरनाक सा इलाका है, दैट इज स्कैरी फॉर अस। ओके, वी कांट गो अलोन इन द जंगल्स। ओके, सो लॉट्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर देयर विच आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. ओके, सो द नेम ऑफ द जंगल इज फॉरेस्ट. So the English name for jungle is forest. Forest, forest. The option is given at N. And for nose. Clear? Moving next to the third one. The third one is guru. Guru. Who is guru?
The guru is someone who teaches you something. I'm not talking about the teachers only. The teachers are not also your guru. Your parents can be your guru. Your music teacher can be your guru. Your cooking teacher can be your guru. Your coaching teacher can be your guru. Anyone who teaches you something that is helpful for you, that is good for you. अगर कोई आपको कोई चीज सिखाता है, that means they are your guru. Okay? तो जैसे आपने सुना होगा पुराने जमाने में गुरु शिष्य kind of, okay, they call guru to their टीचर्स प्रोबेबली. ओके, सो द गुरु जो आपको किसी भी तरह की कोई शिक्षा देता है, कोई एजुकेशन देता है, नॉट ओनली टू दिस, मतलब ये पढ़ाने वाली बात नहीं, इट कैन बी एनीथिंग, डांस हो, हॉर्स राइडिंग हो, कार रेसिंग हो, एनीथिंग. द पर्सन हु टीचेज यू समथिंग इज योर गुरु. ओके, सो द इंग्लिश मीनिंग फॉर द गुरु इज, द इंग्लिश मीनिंग फॉर स्पिरिचुअल टीचर. Spiritual teacher, a person who teaches you something is your teacher. Okay, so spiritual teacher is your guru. So according to the English dictionary, the other name for guru is spiritual teacher. That is given at E. E for elephant. Spiritual teacher. Spiritual teacher. Moving next to the fourth one. Dinghy. 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 What is dinghy? Okay, dinghy is, okay, आपने बोट्स देखी है, वो लंबी लंबी जो बोट्स होती हैं, आपने तो मोस्टली देखा होगा, साउथ में मोस्टली इसका फेस्टिवल भी होता है. दे जस्ट मतलब छोटी छोटी जो रो बोट्स होती हैं. ओके, दे आर नॉट, द डिंगी इज स्मॉल रोइंग बोट्स. ठीक है, जो बोट्स हैं, जो रो वाली जो बोट्स होती है, जो रो में चलती हैं, दे आर नोन एज डिंगी. Okay, so the Hindi name is dinghy, but in English dictionary we know, अगर हम English dictionary में इस को डिंगी का मतलब ढूंढेंगे, we get it as a small rowing boat. एक कतार लगाने वाली बोट्स, एक रो वाली, एक लाइन वाली जो बोट्स होती हैं, they are known as dinghy. Okay, so the answer for this dinghy is DHINGY. This dinghy is small rowing boats that is given at sea. Dinghy is small rowing boats. Okay, so these are the answers from 1 to 4. The first one is checked, that is a small official note. Jungle, that is forest. Guru, that is the person who teaches you something, a spiritual teacher. Dinghy, dinghy is small rowing boats. They are known as dinghy. Clear? Moving next to the fifth one. Okay, I have to erase it for that. The fifth one is loot. The fifth one is loot. ये सबको पता होगा, हिंदी में भी बोलते हैं loot. It is known as loot in Hindi as well as in English also. Loot. Loot means robbery. किसी भी तरह की चोरी, जिसको हम चोरी, robbery बोलते हैं, that is loot. ओके, सो द लूट इज कि मतलब कोई भी चीज की चोरी हो जाना, दैट इज नोन एज, हम कहते हैं लूट हो गई, यहाँ पे लूट हो गई, लूटपाट हो गई. सो दैट इज लूट. दैट इज ऑल्सो यूज इन इंग्लिश. लूट वर्ड इज ऑल्सो यूज इन इंग्लिश, विच मीन्स कहीं पे रॉबरी होना, कहीं पे चोरी होना. ओके, सो दैट इज लूट, LOOT, लूट. सो द अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी वी कॉल इट एज स्टोलन मनी और वैल्यूएबल्स. कोई भी मतलब कोई भी कीमती चीज या फिर पैसे जब चोरी हो जाते हैं, दैट इज नोन एज लूट. ओके, जरूरी नहीं है सिर्फ घर पे हो, इट कैन बी द शॉप्स ऑल्सो, इट कैन बी इन द ATM भी सुनते हो आप. ठीक है, सड़क पे चल रहे हैं तब भी हो जाती है. ओके, सो ऑल दोस थिंग जिसमें कि कुछ भी चीज चोरी हो, दैट इज नोन एज लूट. वी कॉल इट लूट. सो लूट का English word is, that is stolen money or valuables, given at point G. G for got. Clear? Sixth one. Shampoo. Yes, shampoo. The liquid form or the solid liquid form of a product that we use to wash our hairs. Okay, जो ऐसे solid liquid form की चीज जिसको हम अपने बाल धोने के लिए यूज करते हैं, we call it as shampoo. Okay. So the answer for this one is a liquid preparation for washing hair. जैसे कि मैंने आपको बताया शैम्पू, जैसे आपको बहुत सारे शैम्पूज, कौन सा शैम्पू यूज करते हो? Some must be using पतंजलि, some must be using the Dove, some must be using the Park Avenue and Clinic Plus, Head and Shoulders, Tresemme, Pantene. Lots of shampoos are there. Okay, but the common thing is they all are used for washing hair only.
ठीक है, कोई भी जो सब चीजें हैं दैट आर यूज फॉर वॉशिंग हेयर, तो स्पेशली द शैम्पू है, जो शैम्पू किस लिए होता है, देखिए आपको पता है कि शैम्पू जो हमारे जो हैंड वॉश होते हैं वो भी शैम्पू की तरह ही दिखते हैं, बट इट इज नॉट यूज फॉर वॉशिंग हेयर्स, वी यूज फॉर वॉशिंग हैंड्स. Okay, so that's the same thing that this shampoo is particularly used for the products, for the thing, so not thing, that the product or the liquid that is used for washing hair only. Okay, so the answer for this shampoo is liquid preparations for washing hair, that is given at H, given at point H. Shampoo given at point H. Seventh one, pajama. Pajama, okay. Pajama means the loose pants जो आप पहनते हो मोस्टली से. अब आजकल गर्मी का मौसम चल रहा है, the most of us prefer using pajamas the whole day. I myself like pajama wearing whole day because the weather is very hot and we must not be comfortable in the jeans and the shalwars and the leggings. So pajamas are the loose pants, okay, that is very comfortable to wear especially during nights. So we all prefer to wear pajamas during nights. Okay, so what is pajamas? ओके देखिए पजामा एक हिंदी वर्ड है, पाजामा जिसको हम बोलते हैं पायजामा, बट इट इज यूज इन इंग्लिश ऑल्सो. ओके, जो इंग्लिश में भी इसको पजामाज ही बोला जाता है और ये हिंदी वर्ड है. ओके, सो द आंसर फॉर इज लूज पैंट्स वॉर्न वाइल स्लीपिंग मेनली इन पार्ट्स ऑफ एशिया एंड मिडल ईस्ट. तो लूज पैंट्स जो होती हैं, जो पहनी जाती है स्पेशली रात को सोते वक्त, स्पेशली इन द एशिया एंड द मिडल ईस्ट, बट एक्चुअली इट इज यूज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज यूज, people prefer to wear pajamas in spite of wearing jeans during nights so that they can sleep comfortably. Okay, so the pajamas are, what are pajamas? Loose pants worn while sleeping mainly in parts of Asia and Middle East. Okay, so I'll write down the answer, the pajamas. Just a second, PYJAMA, pajama. This pajama is a loose pants worn while sleeping mainly in parts of Asia and Middle East. That is given an option D. D. Moving next to the eighth one. The eighth one is here Kashmiri. Kashmiri आपने ये सुना होगा, Kashmiri. That is Kashmir या कश्मीरी, कई लोग बोलते हैं कश्मीर बोलते हैं. कश्मीर की बात नहीं करें, I'm not talking about the Jammu and Kashmir, I'm just talking about the Kashmir. This Kashmir, what is it? ये कश्मीर क्या होता है आपने देखा होगा. ओके, द कश्मीर इज अ काइंड ऑफ अ गोट. देखिए एक गोट है, जिसे कहते हैं ना कि गोट की एक प्रजाति का नाम है. ओके, फाइन वूल फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ गोट. ये एक जो गोट होती है एक स्पेशल तरह की, मतलब ये गोट्स होती हैं, बकरियां होती हैं, जिसकी जो वूल्स होती हैं दैट इज वो है उतारी जाती है ताकि जो उनसे है जो वुलन जो बन सके. ओके, सो जो उससे वुलन चीजें जो बनती हैं. सो द आंसर फॉर दिस कश्मीर इज, sorry, I'm just finding its correct answer here. The answer is, that is fine wool from a kind of a goat. ठीक है, एक गोट है, एक बकरी है, जिससे कि एक तरह की वूल, एक तरह की ऊन मिलती है. दैट इज अ फाइन वूल फ्रॉम अ काइंड ऑफ अ गोट. एक बकरी से जो एक वूल मिलती है दैट इज कश्मीरी. ओके, सो द आंसर इज F. Okay, so these are the answer from question number 5 to 8. Fifth one is loot, that means some robbery kind of thing. The loot is robbery, कहीं भी कोई चीज चोरी हो जाना. Shampoo, the liquid that is semi-liquid or a liquid that is used for washing hair. The next one is pajamas, that loose pants used. So loose pants wear mostly during this time while people sleep. They just prefer wearing these loose pants. The next one is Kashmir. This is a wool एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल गोट. तो जो एक तरह की ऊन है ये गोट से मिलती है ताकि उससे जो वूलन जो अलग अलग चीजें हैं, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, पजामाज हैं एंड कुछ भी ब्लैंकेट्स हैं, ये सब बन सके. क्लियर? मूविंग नेक्स्ट टू द 9th वन. सो बिफोर दैट आई हैव टू इरेज इट. द 9th वन इज हियर. द 9th वन इज ठग. Yes, ठग. What is ठग? हम कहते हैं उसने हमें ठग लिया. So what means ठग? ठग means
ये एक तरह की काइंड ऑफ चोरी, बट आपको बता के जो चोरी होती है दैट इज ठग। मतलब सपोज यू वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पेंसिल, बाय अ पेन, आपने एक पेन खरीदा एंड यू बॉट इट फॉर ₹10, ओके, एंड सेम पेन इज ब्रॉट बाय योर फ्रेंड एट ₹7 और एट ₹5। सो दैट मीन्स आपको जो पेन उसने ₹10 का दिया है वही आपकी फ्रेंड ने कहीं और से लिया तो उसको ₹5 का मिला। सो दैट मीन्स आप ठगे गए हो, ठीक है, कि मतलब उसने आपको लूट लिया, बता के लूट लिया, मतलब आपसे पैसे मांग के आपको लूटा है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस है वायलेंट क्रिमिनल। ओके, कि किसी भी तरह के ठग करना, किसी से मतलब उसकी तरह से, मतलब एक तरह से ये चोरी है, क्रिमिनल एक क्राइम ही है कि किसी को ठग लेना, कि जैसे हम लोग सुनते हैं मोस्टली की न्यूज में सुनते हैं कि झांसा देकर इतने लूटे, ये दिस ऑल दीज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ठग्स। ओके, सो जब कोई पर्सन जब किसी से कोई चीज लूटता है, ठीक है, तो दैट इज ठग। द पर्सन जो लूटता है दैट इज नोन एज ठग। ओके, अ वायलेंट क्रिमिनल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Okay, moving next to the 10th one. चटनी। चटनी देखिए, ठग चटनी सब हिंदी वर्ड्स हैं। CHUTNEY, चटनी। व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर दिस चटनी? चटनी, आपने बहुत सारी चटनी खाई होगी, टमाटर की चटनी, मिर्च की चटनी एंड पीनट्स की, क्या बोलते हैं, कोकोनट्स की, बहुत सारी तरह तरह की चटनीज होती हैं। ओके, सो तो व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर दिस चटनी? ओके, दैट इंग्लिश मीनिंग फॉर चटनी इज अ थिक सॉस मेड फ्रॉम फ्रूट्स, विनेगर, शुगर एंड स्पाइसेस। एक मोटी सी एक थिक सॉस जो कि किससे किससे बनती है? फ्रूट से, विनेगर से, सिरका, शुगर, चीनी एंड स्पाइसेस मीन्स जो मसाले हैं, तीखे मसाले, इन सब से तो एक तरह की सॉस, जो मोटी सॉस, जो थिक सॉस बनती है दैट इज नोन एज चटनी। ठीक है, हम नॉर्मली हम जो घर पे धनिया की या पुदीने की या इसकी चटनी, दैट इज नॉट चटनी, मतलब वो भी चटनी है। अदर देन दैट, जैसे आप देखते हो कि विनेगर सॉस, टोमेटो चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, शेजवान सॉस, so these all are the form of chutneys. Okay, so the thick sauce made from the fruits, vinegar, sugar and spices, so that is given at K. Chutney is thick sauce made from fruits, vinegar, sugar and spices. Moving next to the 11th one, bangles. What are bangles? Girls must be knowing that, मतलब पता सबको होगा। खैर, the bangles is the ornament that the girls and the ladies, females, they prefer to wear on their wrist. Right, I'm not wearing any bangles, so must I have shown you. किसी भी तरह की, जो हम किसको हम चूड़ी बोलते हैं, तो बैंगल इज अ ज्वेलरी दैट फीमेल्स वियर अराउंड देयर वेस्ट। ओके, आपको पता है बहुत टाइप की बैंगल्स आती हैं, कांच की चूड़ियां, मेटल की, प्लास्टिक की, फाइबर की, लॉट्स ऑफ बैंगल्स आर देयर। ओके, और अलग अलग डिजाइन की आती है। सो व्हाट इज बैंगल? द बैंगल इज अ ज्वेलरी that females used to, that female wear around their wrist, not waist, around their wrist, sorry, around their wrist. Okay, so इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? That is a large stiff ring worn as jewelry around the arm or the wrist. एक बहुत बड़ी सारी एक रिंग देखिए गोल शेप में होती है। सो वैसे ही एक बहुत बड़ी रिंग जो कि रिस्ट पे या आर्म्स पहन जाती है। देखिए, आपने राजस्थानी जो देखे होंगे, जो उनकी बैंगल्स होती हैं वो यहाँ तक ऊपर तक, जो प्रॉपर जो बंजारा टाइप्स होते हैं, दे यूज टू वियर दोस काइंड व्हाइट कलर की बैंगल्स होती हैं, यहाँ से शुरू होके दे जस्ट गो फ्रॉम अप टू हेयर। सो मतलब वो बैंगल्स यहाँ तक पहनते हैं। ओके, सो दिस इज अ बैंगल इज अ लार्ज स्टिफ रिंग worn as jewelry around the arm or wrist. That is given at option number J. Bangles are large rings worn around wrist or arms. 12th one. The 12th one is punch. 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 What is the meaning of this punch? Punch है बेटा, एक दिस इज अ काइंड ऑफ अ ड्रिंक।
पी होगी शायद आपने पंच, मतलब बड़ी ही ये इंडियन मेड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जलजीरा टाइप्स, वैसे ये एक लेमनेड टाइप सी चीज होती है, इसको हम पंच बोलते हैं। ओके, पीने की चीज होती है। ड्रिंक मेड ऑफ स्पिरिट, सोडा, शुगर, वाटर, लेमन, टी एंड स्पाइसेस। ये जैसे हम जलजीरा जैसे एक चीज होती है उसी को हम पंच बोलते हैं। वो वाला पंच नहीं है, ये पंच है पीने वाला पंच। ओके, सो दिस पंच इज अ ड्रिंक, काइंड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, नो सॉफ्ट ड्रिंक, दिस काइंड ऑफ ड्रिंक, ठीक है, जो लेमनेड की तरह होती है, जिसमें जलजीरा है ना और बहुत से स्पाइसेस वगैरह होते हैं। ओके, सो दिस इज अ ड्रिंक मेड ऑफ स्पिरिट, सोडा, शुगर, lemon, water and tea, spices. So the answer is M. M. The answer of this one is M. Okay. So these are your answers from 9 to 12. Okay. Moving next to the next question, that is 13. 13 one is here. The 13th one is cot. That is cot, C-O-T, cot. What is it? Cot means चरपाई, जिसको चरपाई बोला जाता है, that is cot. Okay, अब इसको इंग्लिश मीनिंग क्या बोलते हैं? तो what is the English meaning of cot? A light narrow bed that can fold up and carry easily. देखिए जो चारपाई होती है, देखिए as compared to beds, you can easily carry the cot, you can just move it, ठीक है, there you can fold it, folding वाली भी होती है। So तो एक कैसी एक छोटी सी हल्के बेड्स होते हैं that you can fold and you can carry easily. So these are a light narrow bed that you can fold up and carry easily. Given the answer of your question number cot is L. L for lion. Moving next to the 14th one, that is the last one, that is bungalow. Bungalow. What is the bungalow? जिसको हम हिंदी में बंगला या बांग्लो कहते हैं ना, इंग्लिश में हम इसको बंगलो बोलते हैं और हिंदी में इसको हम बंगला बोलते हैं। तो व्हाट इज द बंगलो? बंगलो कैसे कहते हैं ना कि दिस इज द शाहरुख खान का ये बंगला है। सो दिस इज द बंगलो मीन्स एक मतलब एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग होती है, लेकिन वो बहुत ही बड़ी होती है। अ वेरी लार्ज सिंगल स्टोरी बिल्डिंग इज नोन एज बंगलो। ओके, सो द इंग्लिश मीनिंग फॉर बंगलो इज सिंगल स्टोरी हाउस। सिंगल स्टोरी हाउस, दैट इज गिवन एट ऑप्शन नंबर बी। B for boy. Okay, so these are the answers of 13 and 14, that is L and B. So this is your page number 79, English words in Indian words in English. Okay, so with this I am ending our today's session here only. I'll see you again very soon in our next session. So till then everybody have a good day.